So the topic name is bipolar junction transistor. That here the bipolar term refers to that the current is due to the flow of majority as well as due to the minority carriers, right? And this BJT is a 3-terminal device. The 3 terminals refers to as number 1 is emitter, number 2 is base, and number 3 is collector. And we shortly call it as E, B, or C. Right. Now, whenever we construct a transistor, so in this construction, there is a use of N-type or P-type, है ना? दो ही हमारे semiconductor में पढ़े हैं. So we will use these 2 types of material, but how they are going to use? Either there are 2 N-type materials plus 1 P-type, or 2 P-type material plus 1 N-type. Right. So जो चीज सिंगल है, either one P type or one N type, उस सिंगल वाले को we are keeping it inside, means it is acting as a sandwich. So we will make a sandwich of 2 semiconductors. Let me draw the figure. Suppose I am having 2 N types semiconductor material plus 1 P type semiconductor material. सर एक सेकंड के लिए आप पिछली स्लाइड लगा दीजिए. हाँ जी बताओ, क्या पूछना है बताओ इसमें. मटेरियल मतलब देखना था कि क्या क्या लिखा है, वो थोड़ा सा हल्का सा रह गया था तो बस वही देखा. Okay, done. Yes sir. So now if we are having 2 N-type semiconductor material and 1 P-type semiconductor material, how they are being arranged? Let me draw that. So we will take, if there are 2 N-type materials, so keep it one N left side, one N right side, and in between place the P-type material. Or if you have 2 P-type material, plus 1 N-type material, then we'll keep 2 P's at the extremities, and in between we will sandwich with the N layer. So ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी कि अगर एक ट्रांजिस्टर मेरे को बनाना है तो या तो 2 N टाइप मटेरियल होंगे और एक P टाइप होगा, या 2 P टाइप होंगे एक N टाइप होगा, राइट? सो व्हेनेवर इट्स लाइक दैट, तो आपको करना क्या है, जो सिंगल लेयर है उसको सैंडविच करना है बिटवीन द 2 सिमिलर लेयर्स. गॉट इट? सो व्हेन यू डू दिस थिंग, सो इट्स इन द फॉर्म NPN or PNP. So we'll call this as NPN transistor or PNP transistor, depending upon how you construct it. Right? अब जो लेफ्ट वाला है आपका लेफ्ट साइड पे, we generally call this terminal as emitter. Although both left and right are NN, right? तो आप उसको स्वैप भी कर सकते हो, लेकिन जब हम इसकी बायसिंग करेंगे, समझेंगे, तो हम लेके चलेंगे one is emitter and one is collector. So here the leftmost जो आपका सेम मटेरियल है N, center one is your base and right one is collector. Likewise in PNP also, emitter, base, collector. Now the thing is that we are using these semiconductor materials and they are obtained by doing some doping into the pure semiconductor, right? Now let's talk about the doping concentration. So if we talk about the doping, your emitter terminal is heavily doped. क्या मतलब है कि जो मैं अगर एमिटर मेरा एन टाइप का होगा या पी टाइप का होगा, दोनों में से कोई एक होगा, है ना? तो अगर मेरा एन टाइप का मटेरियल है तो ये वाला एन टाइप जो सा एमिटर है ये हेवी डोप्ड होगा. इट मींस इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर पी जो सा लेफ्ट वाला ये हेवी डोप्ड होगा, इसमें होल मेजॉरिटी में होंगे. सो कहने का मतलब क्या है, वी विल नॉट से कि एन टाइप या पी टाइप हेवी डोप्ड, वी विल से एमिटर टर्मिनल whatever the transistor I am using should be heavily doped, right? Next thing आ गया, what about the base and the collectors?
सो कलेक्टर जो होगा और एमिटर होगा, दे ऑलवेज आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ मटेरियल्स, है ना, या दोनों एन होंगे या दोनों पी होंगे, लेकिन जो कलेक्टर होगा वो क्या होगा, इट इज लाइटली डोप्ड। दोनों में ये डिफरेंस आ गया पहले, चाहे दोनों एन टाइप के हैं एमिटर कलेक्टर, या दोनों पी टाइप के हैं, लेकिन दोनों में डोपिंग का फर्क आ गया। सो जो टर्मिनल हमने एमिटर को बनाया, इट मींस वो पर्टिकुलर मटेरियल हैवीली डोप्ड है, ये इसकी दिमाग में रखने की बात, और कलेक्टर लाइटली डोप्ड है। इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको अभी, राइट। देन इफ यू कम टू द बेस, दिस इज वेरी lightly doped. So अभी तक हमें क्या समझ में आई कि जो हमारा बीजेटी है उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर को हैवी डोप किया, बेस को वेरी लाइटली डोप्ड, कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड। एंड एमिटर कलेक्टर आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ मटेरियल, पी और एन। अगर दोनों पी होंगे, हाँ बोलो। सर हम जो ये बेस की बात कर रहे हैं, हम जो तीनों की बात कर रहे हैं, ये एक जैसे हम पी के टर्म्स में कह रहे हैं कि जो बेस वेरी लाइटली डोप्ड है, अगर एमिटर और पी बेस की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ देखो, वी हैव नॉट रिटन हियर कि कौन सा ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, है ना, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, हर एक में ऐसा ही फॉर्म होगा। सर अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मतलब एमिटर एन में हेवीली डोप्ड है, कलेक्टर एन में ही लाइटली डोप्ड है, और जो बेस है वो एन के अंदर लाइटली डोप्ड होगा। जो डोपिंग की कंसंट्रेशन है, राइट, हम कह रहे हैं अगर हेवीली डोप्ड है, या हम कह रहे हैं लाइटली डोप्ड है, या हम कह रहे हैं लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड, तो वो उसी मटेरियल की, ये नहीं कि दूसरा डाल देगा। ओके सर, मतलब जो बेस है एनपीएन के लिए वो वेरी लाइटली डोप्ड है। यस, ओके ओके सर, राइट। पी में वेरी लाइटली डोप्ड होगा ना फिर। हाँ, बेस हमारा सबसे लाइटली डोप्ड है, ठीक है। अब इसकी बात आते हैं कि जो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, दिस विद द बेस विड्थ इफ आई कंपेयर, इसमें क्या रिलेशन होता है, लेट मी कॉल दिस एज x एंड लेट मी कॉल द एंटायर एज y, राइट। तो अगर मेरी टोटल वेव ट्रांजिस्टर की विड्थ देखूं और मैं बेस की विड्थ देखूं, तो बेस की विड्थ बहुत ही स्मॉल होती है। सो इफ आई कंपेयर इट y is to x, it is of the order of 150:1। मींस अगर ये मान लो 0.15 इंच की है, तो ये कितना होगा, 0.1। गॉट इट। तो इट मींस जो आपकी ओवरऑल विड्थ है ट्रांजिस्टर की, अगर मैं बेस की विड्थ से कंपेयर करूं, तो बेस की विड्थ उसकी रेशियो 1:50:1 की रेशियो में आ रही है, मींस बहुत ही छोटी है, इट्स वेरी वेरी नैरो। सो व्हाट आई नो नाउ कि अलोंग विद दिस डोपिंग लाइटली डोप, इट इज आल्सो वेरी नैरो विड्थ, ठीक है। अब क्वेश्चन आया था कि अब कैसे काम करता है। अभी हमें समझ में आ गया कि डोपिंग कंसंट्रेशन कैसे होती है, हमें पता लग गया एनपीएन कैसे बनता है और पीएनपी कैसे बनता है, हमें ये पता लग गया कि भी किसको एमिटर बोलना है, किसको बेस बोलना है, किसको कलेक्टर बोलना है, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स टॉक अबाउट पीएनपी ट्रांजिस्टर। सी, जो भी मैं ट्रांजिस्टर समझा रहा हूं आपको, एग्जैक्टली उसका उल्टी वर्किंग आपकी एनपीएन की हो जाएगी, है ना। जैसे पीएनपी में बात करूंगा तो मेजॉरिटी में होल्स है, एनपीएन में क्या होगा, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस। सपोज मेरा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी दिस साइड एंड द मिड पी राइट साइड। सो एन जो आपका सैंडविच लेयर है, ये बहुत ही छोटी है ना, हमने ये बात करी थी अभी। सो दिस इज माय एमिटर। नाउ व्हेन वी मेक सम कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पर एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स आए थे। नाउ here also we will apply some bias voltage across this input, that is emitter and base. अब हमने क्या किया, for this PNP transistor we have just connected one battery across this PN. अब ध्यान से देखो, इस PNP ट्रांजिस्टर हो या आपका NPN ट्रांजिस्टर हो, how many junctions you have? 3? sorry, कितने होंगे बताओ? 2, only 2. एक तो होगा, कौन से होंगे? one is emitter base junction, Yes ma'am. another one is base collector junction, है ना। तो इसको बोलते हैं हम, एमिटर बेस को बोलते हैं इनपुट जंक्शन, और इसको बोलते हैं आउटपुट जंक्शन।
ठीक है, अब मैंने क्या किया इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, आई हैव जस्ट shown that my input junction is forward or reverse. क्या किया मैंने? Forward. Forward bias. Forward So I junction. have made the input junction forward biased. Yes, sir. Now you all know that कि if a particular junction is forward biased, then what happens to its depletion region? Depletion region It moves forward. short हो जाती है. Yes, narrow होती है ना. Yes, sir. So आगे So आगे it means अब डिविजन नैरो की प्लस और क्या होता है, देयर इज फुल फ्लो ऑफ करंट current. मेजॉरिटी कैरियर्स फर्स्ट, आई विल से, Okay. ठीक है, उसकी वजह से करंट आ रहा है डेफिनेटली. सो देयर इज फुल फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इट रिजल्ट्स इन द मेजॉरिटी करंट. अब यहां पर लेफ्ट साइड पे मेजॉरिटी क्या है हमारे पास, होल्स, और यहां पर क्या है मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स. Yes, sir. सो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, होल्स यहां जाएंगे, है ना. सो अब मुझे ये बताओ कि फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन व्हाट विल बी द टोटल डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन विच साइड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट Left to right. Left to right. So it means I can draw it like this, the bigger arrow showing that this is the majority current. So it means जब मैंने अपने इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया तो मुझे इतना पता लग गया कि देयर विल बी फुल फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, करंट बहुत बढ़ेगा और टोटल ओवरऑल डायरेक्शन करंट की क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर प्रेशर करते हैं. सो यहाँ पर हायर प्रेशर यहाँ पर है, लोअर यहाँ पर है. सो इट विल गो लाइक दिस. प्लस अदर साइड हम कहते हैं कि जो हमारा फ्लो ऑफ होल्स होती हैं उसी की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं फॉर रेफरिंग टू द करंट. Current. Yes, sir. राइट, ये तो हमारा हो गया इनपुट जंक्शन का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटपुट जंक्शन. लेट मी अगेन ड्रॉ दिस. दिस इज माय P inside it is N. Now I will keep it open. यहां कुछ नहीं लगा रहा मैं अभी, ठीक है. Now across this I am applying a battery. अब बताओ मैंने क्या किया, ये बैटरी लगा के फॉरवर्ड किया, रिवर्स किया, क्या किया? Sir, reverse bias कर दिया. कौन से जंक्शन को? Sir, ये Output junction. base to collector. हाँ वही. So it means output junction is now reverse biased. Current flow नहीं करेगा मतलब. करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना. लेकिन यहाँ पर देखो कुछ और होगा आपके सामने, अभी देखो कैसे होता है. अब अगर आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस होगा, इसका मतलब क्या है, डिप्लीशन रीजन क्या होगी, Increase करेगी मतलब expand out करेगी. यस, तो डिप्लीशन रीजन वाइडन्स. Yes, sir. ठीक है. सो अब यहाँ पर करंट जो फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी? Minority. मिनॉरिटी कैरियर अब देखो ध्यान से, जो हमने पहले केस किया था, इस वाले केस में क्या हुआ था हमारे पास कि हमने कहा मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं और करंट हमारा यहां से लेकर यहां पर जा रहा है. मींस यहाँ के जो होल्स थे उन्होंने क्या किया, यहां पर आ गए होल्स, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने फॉरवर्ड बायस किया इनपुट जंक्शन को, तो जो मेरे पास मेजॉरिटी कैरियर्स थे, जो होल्स थे, वो सारे के सारे कहां पहुंच गए, एन साइड पे, तभी करंट आया. एग्रीड और नॉट? Sir, एक बार रिपीट करना जरा. आई अगेन रिपीट. जब हमने इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, उसकी हाँ, वजह से सर. हमारे पास मेजॉरिटी करंट आ रहे हैं, है ना. तो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या थे, होल्स थे. Holes. होल्स कहाँ पहुंच गए, अब एन पे पहुंच गए, Yes, sir. और एन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गए, पी पे पहुंच गए, ठीक है. राइट. तो इसकी वजह से हमारे पास एक मेजॉरिटी करंट आ गया, जो हमने यहाँ लिखा है मेजॉरिटी करंट. Yes, sir. अब जब मैं आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा हूं तो रिवर्स बायस की वजह से क्या होता है, माय डिप्लीशन रीजन विल एक्सटेंड, है ना. ये मैं लिखा है, वाइडन हो जाती है. अब Yes, कितना वाइडन होगा, लेट मी ड्रॉ ये दैट. आपने रिवर्स बायस किया है? यस, आप बताओ रिवर्स है फॉरवर्ड है, पी पे तो शो उल्टा तो फॉरवर्ड किया मैंने, वो है ना. उल्टा आपको किया बताओ ना. यस, वेरी गुड. तो इट शुड बी लाइक दिस. अब ठीक है.
हाँ Yes, सर sir. right? So we have done the output potential reverse bias by connecting a negative terminal of the potential with the p type. This will increase the diffusion region width. Now this will flow the further flow of majority carriers, जो आप अभी कह रहे थे, है ना, कि जब हम कहते हैं कि जब हम किसी भी डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो नहीं करता, यही बोलते हैं ना हम, यस सर या करता है तो बहुत स्मॉल करते हैं, वो कौन सा होता है, लीकेज करंट इसको बोलते हैं हम, यस सर लीकेज करंट और माइनॉरिटी कैरियर करंट, यही कहते हैं ना। अब यहाँ बताओ मुझे, जब हमने इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया था तो हमारे पास एन में क्या आ गए, होल्स आ गए बहुत सारे। हाँ अब और एन में हमारे माइनॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एन में जब माइनॉरिटी में तो होल्स होते हैं। होल्स होते हैं, और होल्स ऑलरेडी हमारे पास आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, मेजॉरिटी होगी। यस, तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल्स जो यहाँ से आ रहे हैं मेरे फॉर द एक्टिव, जो पहले हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया था जब हमने इस टाइम पे, तो यहाँ पर होल्स आ गए। नाउ दिस होल will transfer to the collector when we apply the reverse bias, because at that time only the minority carrier will flow. Now here minorities in n-type material is what, holes, but now holes are already in very abundance, so there will be maximum flow of current. So it means now there will be also some flow of current, we will call it as minority current. So अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो आपका एमिटर टर्मिनल है जो पी टाइप का था, इसका काम क्या था, होल्स को थ्रो करना टुवर्ड्स द कलेक्टर साइड, और इंटरमीडिएट में क्या बेस है, तो बेस क्या है हमारे पास, लाइटली डोप्ड, राइट, और बेस की विड्थ भी बहुत नैरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे करंट आएंगे, जो हमारा एमिटर ने करंट जनरेट किया, लेट्स से आई को मैं लिखा इसके नाम से, अगर हमने आई लिखा, लेट मी ड्रॉ वन मोर फिगर, वेट, लेट मी कंबाइन बोथ दिस, तो आपको लेट मी टेक now both the biasing potentials simultaneously. So ये आपका मान लो n है, ये आपका p है, ये भी आपका p है, हमने इसको कर दिया फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और इसको हमने कर दिया रिवर्स बायस। अब देखो ध्यान से, जब मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो क्या होगा, what happens to the diffusion region width, let me draw the diffusion region now. तो मतलब कि जो कलेक्टर होगा वो आपके एमीटर में से माइनॉरिटी या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को खींचेगा अपनी तरफ। सी जो आपका बेस है, जब हमने बेस और कलेक्टर उसको रिवर्स बायस किया ना, इसका मतलब क्या है, देयर विल बी ओनली फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, होगी डिफ्यूजन की विड्थ बढ़ जाएगी, लेकिन माइनॉरिटी वहां पर होल्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं, क्यों, क्योंकि वो पीछे एमिटर से आए हैं मेरे पास। हाँ, सो इसकी वजह से उसकी वजह से करंट आ जाएगा हमारे पास। यस सर। सो दैट करंट विल कॉन्स्टिट्यूट टू द माइनॉरिटी करंट्स। सो एक तरह से क्या हो रहा है, आपका एमिटर एमिट कर रहा है, बेस उसको पास कर रहा है और कलेक्टर उसको कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। यस तो अब यहाँ पर देखो, जो मैंने ये ब्लू लाइन ड्रॉ किया, दिस इज शोज द डिप्रेशन रीजन विड्थ फॉर द केस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। नाउ लेट मी ड्रॉ द डिप्रेशन रीजन फॉर द केस व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। अब एक चीज देख ध्यान रखना, मैं भी बनाता हूँ यहाँ पर, देखो कि जो डिप्रेशन रीजन ये वाली है, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। अब आपने एक चीज देखी कि मैंने जो डिप्रेशन रीजन की विड्थ बनाई है वो किस तरह से बनाई है। यस सर, साइड पे बहुत ब्रॉड है और दूसरी साइड पे नैरो है। हाँ, अब देखो ध्यान से कि ये जो मेरा बेस था, इफेक्टिव बेस कहां से लेके कहां तक था, यहाँ तक बेस था मेरा, है ना, इसे आगे यहाँ तक था रफली। तो अब आप ये देखो, जो डिप्रेशन रीजन की विड्थ है वो कहां पर ज्यादा गई है, इट एक्सटेंड्स मोर टुवर्ड्स द बेस साइड रादर देन लेसर टुवर्ड्स द कलेक्टर साइड। ऐसा क्यों हुआ सर? बैटरी की जो है वो पहले P से N जा रहे थे, तो दोबारा बोलो। होल्स जो है वो P से N जा रहे थे, तो वहां पर होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, बिल्कुल वहां ठीक पे है, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा है, क्योंकि इसलिए वो उस तरफ ज्यादा टेंड हो गए, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी उस एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ज्यादा है ना वहां पे। सर बैटरी वोल्टेज ज्यादा है उस तरफ। नहीं वो भी नहीं है, और कोई उधर रिवर्स बायस करके सर उसकी वहां जो माइनॉरिटी विड्थ कैरियर काफी वाइडन ज्यादा है।
नहीं, देखो इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। आई विल अगेन ड्रॉ फॉर दिस पर्पस कि मान लो ये आपका था कलेक्टर, ठीक है, और मान लो ये आपका था बेस। अब मैं कह रहा हूं जब मैंने इसको रिवर्स बायस किया ना इस जंक्शन को, तो जो डिप्रेशन आपकी आएगी, हम कहते हैं वाइडन हो जाती है ना रिवर्स बायस से। तो वाइडन होगी तो इट विल लेट्स से go into this part and let's say lesser in this part. So my question is that why this depression region goes lesser towards the collector side than more towards the base side? That's my question. तो क्योंकि सर माइनॉरिटी कैरियर्स है जो वो बेस के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू जो कलेक्टर है। डोपिंग कम है ना सर। Yes, that is the point कि here base is lightly doped. Yes, sir. अगर लाइटली डोप्ड होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर डिप्रेशन रीजन की बिट ज्यादा जाएगी ना। जो जो कलेक्टर है वो बेस से ज्यादा डोप्ड है। दैट इज द वे हम डिप्रेशन रीजन उसके अंदर ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, लेकिन बेस जो सा लाइटली डोप्ड है उसके अंदर ज्यादा जा पा रही है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। सो ड्यू टू डोपिंग ओनली द डिप्रेशन रीजन वाइडन्स मोर टुवर्ड्स द बेस साइड एंड लेसर टुवर्ड्स द कलेक्टर साइड। नाउ व्हाट विल हैपन कि यहां से हमारे पास आया था मेजॉरिटी करंट, कुछ इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, कुछ होल्स होंगे जो मेरा बेस की तरफ जा सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे मेरा बेस करंट को। जैसे मैंने कहा इनपुट मेरा करंट है आई, तो यहां से जो आई जा रहा है, अब इस पर्टिकुलर को बेस की विड्थ बहुत ही नैरो है, तो देयर विल बी वेरी लेसर नंबर ऑफ कैरियर्स व्हिच कैन कॉन्स्टिट्यूट द बेस करंट। यस सर। एवरीथिंग विल बी पास ऑन टू द कलेक्टर। Right. So what I can write here is that for any of the transistor, I can write that emitter current, that is my input current, is always equal to my base current plus collector current. Collector current. ये आपको मैंने जो रिलेशन दिया है, this is a very first relation for your BJT, कि कभी भी BJT का क्वेश्चन है, चाहे आपका वो NPN ट्रांजिस्टर है, चाहे आपका वो PNP ट्रांजिस्टर है, हर एक केस में क्या होगा कि emitter current, that is the input current, is always equal to the base current plus collector current. Collector current. Got it? अब देखो यहां से कि अगर मैं इसको NPN PNP की जगह अगर NPN कर दूं तो क्या होगा? Only the direction gets changed. Yes sir. तो उस केस में क्या हो जाएगा वो बना के दिखाता हूं मैं आपको अभी। सर हाँ बोलो। सर ये बैटरी का पोटेंशियल सर जानबूझ के ज्यादा लगाया क्या सर? वैसी जानबूझ के ज्यादा लगाया है। वो क्यों लगाया उसके पीछे रीजन है। इसको मैं पता कैसे समझाता हूं बच्चों को। जैसे मान लो एक एमिटर है, एमिटर का काम क्या है? एमिट करना। क्या एमिट करना? मेजॉरिटी कैरियर्स, है ना। तो अब एमिटर का काम है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी कैरियर्स को एमिट करे। तो हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया तो उसकी डिफिनेशन बहुत नैरो होगी, तो वो मैक्सिमम एमिट कर पा रहा है। अब कलेक्टर का काम क्या है? उसको रिवर्स बायस करना, उसको स्टॉप करना, उसको कलेक्ट करना। तो कलेक्टर जॉब इज जस्ट टू कलेक्ट ऑल द मेजॉरिटी कैरियर्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द एमिटर साइड। तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए वी हैव टू अप्लाई मोर रिवर्स बायस, so that diffusion width can widen up and there will be proper reflection of the collector current. Got it? Yes sir. अब देखो अगर मान लो ये ट्रांजिस्टर मेरा NPN होता, यहाँ पर N होता, यहाँ पर N होता और बीच में मेरा मान लो सैंडविच लेयर P होती, तो क्या होता है? इसको फॉरवर्ड बायस करता है, इट मींस इट विल बी लाइक दिस। रिवर्स बायस करता है, देन इट विल बी लाइक दिस, है ना। अब क्या होगा? मेजॉरिटी यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाते हैं, होल्स यहाँ से यहाँ आती, तो डायरेक्शन कहाँ आती? इस तरफ, उस तरफ, राइट टू लेफ्ट, अपोजिट हो जाएगा उसका। ऑपोजिट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं था। लेकिन इसमें भी क्या होता? IE is always equal to IB plus IC। वो तो सेम ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा हमारे पास। इतना क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिंबल। अब आपका ट्रांजिस्टर हम हमेशा ये तो बनाएंगे नहीं बॉक्स, है ना, तो हमारे पास सिंबल होता है। सिंबल कैसा होता है? लेट मी ड्रॉ दैट सिंबल। इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस, तो ये इस तरह का सिंबल होता है। P में एरो अंदर को, N का एरो बाहर को, और एक होता है हमारे पास ऐसे। सर ये किसका सिंबल है? ट्रांजिस्टर का, मैं बता दूं। ट्रांजिस्टर का। अब जो ये सिंबल है ना बच्चे, इसमें जो एरो है दिख रहा है आपको, ये वाला एरो? हाँ सर। इस एरो की कोई इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। इसके लिए आपको सिंपल फंडा याद करता हूँ कि जो आपका एरो है ना, जैसे हम कहते हैं करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है फ्लो,
है ना? तो आप ये रखो कि जो आपका एरो है वो P से स्टार्ट हुआ और N पे जा रहा है। अगेन रिपीट, जो करंट होता है हम बोलते हैं इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना? सो इट मींस P से स्टार्ट हुआ और N पे जा रहा है, तो जो आपका एरो है वो N की तरफ जा रहा है। इट मींस अगर ये आपका एरो है तो यहाँ पर क्या होगा, N होगा डेफिनेटली, और ये एरो स्टार्ट कहां से हुआ, P से, तो ये NPN हो गया, तो ये NPN हो गया। वेरी गुड। लाइक भाई यहाँ पर देखो एरो इस तरफ है तो एरो के साथ जोड़ दो N को, उसके पीछे लिख दो P, तो ये PN P। तो दिस इज अ सिंबल फॉर द NPN ट्रांजिस्टर एंड दिस इज अ सिंबल फॉर योर PNP ट्रांजिस्टर। जब भी आप सिंबल बनाओगे किसी भी लैब में, कभी ट्यूट में, कभी आप एग्जाम में, मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द एरो। अगर एरो नहीं बनाओगे तो आपका वो सिंबल गलत है। क्यों? पता ही नहीं चला फिर। क्या बताता है, लेट मी टेल यू दैट आल्सो। तो आपका एरो है, इट इंडिकेट्स द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। Number 2, it tells you the emitter terminal identification। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर सिंबल में, क्योंकि दोनों N है या दो P है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट। सो जहां पर एरो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो वाला टर्मिनल कौन सा है, एमिटर। तो यहाँ पे मेरा कौन सा होगा, ये एमिटर हो गया। ये कौन सा हो गया, बेस। और तीसरा कौन सा हो गया, कलेक्टर। लाइकवाइज यहाँ पर ये एरो यहाँ से जा रहा है, तो एरो जो आपके दो ऑपोजिट तो सेम है, तो एक आपका एमिटर है ये वाला एरो वाला, ये वाला आपका बेस, ये वाला आपका कलेक्टर। सो एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो अब इसमें देखो ध्यान से कि अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एरो नीचे है ना, तो यहां पर इसी के अकॉर्डिंग बनाओ। देखो मैं बना रहा हूं आप सामने, ये मैंने क्या बनाया, जिस डायरेक्शन में आपका एरो जा रहा है उसके बाहर का जो टर्मिनल है वो करंट वहां जाएगा, है ना। सो लेट मी कॉल इट एज दिस इज IE। लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट दिस PNP ट्रांजिस्टर, यहां पर एमीटर से एरो बाहर की तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है ना, तो इनगोइंग और इनगोइंग, so it will be like this। so this is my emitter current। अब आपको पता है कि जो IE है वो मैंने बताया I always equal to IB plus IC। और KCL लॉ कहता है कि अगर एक करंट इनकमिंग है और दो करंट आउटगोइंग है तो दोनों का सम इक्वल होगा। यस सर। राइट, तो यहाँ पर एमिटर करंट आउटगोइंग है, इसका मतलब क्या है, बाकी दोनों करंट्स क्या होंगे, इनकमिंग। इनकमिंग। हाँ। हियर इट इज इनकमिंग, तो बाकी दोनों क्या होंगे, आउटगोइंग। ये क्लियर हुआ को नहीं हुआ? Let me just go back and show you कि whatever we have discussed. If you have any doubt, you can ask. कोई चीज क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ। I can again repeat. सर एक बार प्लीज थोड़ी ब्रीफ के अंदर वो एक बार समझा दोगे PNP का। PNP ये वाला वर्किंग सर, यस वर्किंग सर। हाँ देखो, वर्किंग में क्या बचे, जो आपका PNP ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर हमने क्या कहा कि दो आपके P टाइप मटेरियल्स हैं और बीच में सैंडविच लेयर कौन सी है, N की। ठीक है, अब जो हमारे पास एमीटर होता है उसको हमने क्या बोला था, इट इज हेवीली डोप्ड। यस सर। और कलेक्टर लाइटली डोप्ड है, और जो आपका बेस है वो वेरी लाइटली डोप्ड। सबसे कम डोपिंग बेस की है हमारे पास। ठीक है, अब अगर एमिटर के अंदर बहुत हैवी डोपिंग है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स बहुत ज्यादा होंगे। जैसे हम उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स विल गो टुवर्ड्स द अदर साइड। तो अगर PNP है तो आपका होल्स यहां से निकलेंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स N में पहुंच जाएंगे, होल्स मेजॉरिटी में, है ना। अब हमने क्या कर रखा है, नेक्स्ट जो आपका जंक्शन है, आउटपुट जंक्शन, इसको हमने रिवर्स बायस कर रखा है। Right, so when we reverse bias this junction, it means division region width widen up होगी। अब ये करके रहिए, this further stops the flow of majority carriers, but now in the base we are having in abundance holes because they are coming from the emitter, because the emitter is continuously emitting the holes, right? So it means this will flow to the
collector. So collector is now going to collected. So now we have said that कि when we apply both the biasing, तो आपकी जो ये इनपुट जंक्शन है उसकी विड्थ बहुत नैरो है, आउटपुट की विड्थ बड़ी है. वो क्यों है? बिकॉज इनपुट आपका फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट आपका रिवर्स बायस है, राइट? सो इट मींस अब जो आपके इनपुट से करंट आ रहा है, जो कैरियर्स आ रहे हैं, देयर विल बी वेरी स्मॉल number of carriers which will result in the base current, right? And majority will go to the collector, right? So this will always be a relation emitter current is equal to IB plus IC. Yes. Right. Now, one thing I also want to tell you that कि the base current is of the order of microamperes. छोटा. Yes, microampere बहुत कम होता है base में. क्योंकि इसकी सिर्फ width IC होता है और आपका जो IE होता है, they are of the order of milliamperes. सर इसमें IC बड़ा होता है या IE बड़ा होता है? आप बताओ. IE बड़ा होता है. आप इस इक्वेशन देखो ना बच्चे. बड़ा होगा सर वो तो. Yes, जो sir. टोटल करंट है वो बेस प्लस कलेक्टर के है, तो डेफिनेटली ये होगा. लेकिन हम मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में जब सॉल्व करेंगे तो वी विल जनरली टेक IE अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू IC. क्यों? क्योंकि बेस करंट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. ओके सर. ठीक है. हाँ बोलो. अरे ये बताना कि इसमें बेस, वो जो बेस वाला और कलेक्टेड होगा, इसमें बेस का डिप्लीशन रीजन बड़ा क्यों है? वो इसलिए बिकॉज दिस आवर बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड. तो जिसकी डोपिंग कंसंट्रेशन कम होगी उसके अंदर डिप्लीशन ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, जिसकी ज्यादा है उसके अंदर कम पेनिट्रेट करेगी. जैसे हम कहते हैं कि जो इंसान बहुत ताकतवर है उसके अंदर उसको कम लोग तंग करेंगे, जो कम ताकतवर है उसको सारे तंग करेंगे. तो सेम केस में डोपिंग है उसको. तो अगर उस विचार की डोपिंग कम है तो इसका मतलब क्या है, जो डिप्लीशन का इंपैक्ट मोर उसके ऊपर पड़ेगा देन द अदर. ठीक है सर. ठीक है. अब इसमें एक चीज हमने और आएगी हमारी, ये तो हो गया एमिटर इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर. अब जो हमने कहा कि देयर इज अ फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स टू दिस आल्सो, तो माइनॉरिटी कैरियर्स को यहां पर हम लिखते हैं ICO से. So there is a relation, just note down that relation. Let me write on the separate page. That is IC. Sorry, जो आपका total current है IC, that is due to the flow of majority as well as due to the minority. So IC will be written as IC majority plus IC minority. And we generally call this as IC majority plus ICO. अब ये ICO का मतलब क्या है? इट्स अ लीकेज करंट. सो अगर आपको याद हो, हमने जब डायोड पढ़ा था, डायोड में हमने कहा था देयर इज सम लीकेज करंट, है ना? यस सर. ICO भी आपका लीकेज करंट है. ये भी आपका किसके ऑर्डर में होता है? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोएम्पियर्स. क्लियर? यस सर. अभी तक किसी को कोई भी डाउट प्लीज आस्क. नो सर. नाउ नो. जो ट्रांजिस्टर है इसके 3 टर्मिनल्स आपको पता लगे, एमिटर बेस कलेक्टर. अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसको यूज कैसे करना है ट्रांजिस्टर को हमने. सो फॉर दैट देयर आर 3 configurations. Let's discuss that. There are 3 configurations in which BJT can be used. अब वो कौन सी होती है? अब हमारे पास 3 टर्मिनल्स है, तो हम इसको ऐसे देखेंगे, एक 2 पोर्ट नेटवर्क. लेट्स कंसीडर, हैव यू एवर स्टडीड 2 पोर्ट नेटवर्क? सर ये कौन सा नेटवर्क है? मैं बताता हूँ. 2 पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक इनपुट पोर्ट है, एक आउटपुट पोर्ट है. ऐसे समझ लो कि कोई नेटवर्क है, उसके 2 पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट से इनपुट आ रही है, एक पोर्ट से आउटपुट दे रहे हो. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब 2 पोर्ट नेटवर्क है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ इनपुट वोल्टेज होगी और कुछ इनपुट करंट होगा. यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होगी और यहाँ पर आउटपुट करंट होगा, राइट? तो अब जो आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है उसके देखो कितने टर्मिनल्स है? 1 2 3 4 टर्मिनल्स है. हाँ सर. बट हमारे पास ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3. तो अब मैं ट्रांजिस्टर को एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क लेके चलूं तो हाउ कैन आई डू दैट? सर किसी को कॉमन करना पड़ेगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला. सो इट मींस अब जो एक टर्मिनल 1 टर्मिनल
will act as common. Common मतलब क्या? Common between input and output. Yes, सर आपने आई आउट का एरो गलत तो नहीं लगाया, मतलब वो भी इनसाइड ही आपने शो करा उस पे। वो बाहर अब को ये लो, है। ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है। वो इनपुट आउटपुट बेसिकली क्या है, ये आपको सर्किट की आउटपुट मिल रही है, ये वो बीजेटी की वो नहीं है। तो आप अगर मान लो मैंने एरो ऐसे बनाया हुआ तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि 3 टर्मिनल्स हैं और हमने उसको यूज करना है 2 पोर्ट नेटवर्क, तो यू हैव सेड दैट कि वन टर्मिनल शुड बी कॉमन। अब क्वेश्चन है कौन सा कॉमन है? सो द आंसर इज दैट एनीवन। So based upon the common, there are 3 configuration. One is referred as common base. One is common emitter. One is common collector. So there are 3 configurations: common base, common emitter, common collector. So when I said common base configuration, इसका मतलब क्या हुआ कि base common है input के भी और output के भी, right? So let me try to draw that to make you more insight into that. कि common base है तो let's say, अब जब हम configuration की बात करते हैं तो we can either use NPN और PNP, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कौन सा यूज करना है, राइट? कोई भी यूज करो। So let me draw, ये कौन सा ट्रांजिस्टर बनाया मैंने? सर ये एनपीएन है। नहीं, अभी बताया यार। PNP अच्छा है। पीएनपी एरो पीएनपी लिखो, पीएनपी जहाँ पे एरो पीएनपी। PNP ट्रांजिस्टर है। अरे ठीक हाँ है? हो गई गलती। अब ये नीचे वाला बेस हो गया, ये एमीटर हो हाँ। गया और यहाँ पर कलेक्टर हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने ऐसा बनाया, लेट मी एक्सटेंड दिस, यहां पर मैंने इनपुट लगाई, यहां मैं आउटपुट ले रहा हूं, यहां से इनपुट करंट आ रहा है, यहां से आउटपुट, इनपुट आउटपुट बना लो, लो ऐसे दिखा दो आप। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। सो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी मेरी? हियर बेस इज कमिंग इन द Common. इनपुट आल्सो, आउटपुट आल्सो, यस so सर। it is referred to as कॉमन बेस। common base configuration. Number 2, let me draw common emitter. For common emitter क्या करो? You keep emitter down. जिसको कॉमन करना है उसको कोशिश करो नीचे ले आओ पहले, ठीक है? सर ये नेक्स्ट पेज पे बना दो। ओके, सर एक सेकंड रुकना फिर सर। लो दोबारा बना देते हैं, कोई इशू नहीं। सर एक सेकंड, वो प्रीवियस तो बाद में करना है। ये लो, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सो अब यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। तो अब मैं इनपुट अगर दूंगा इसके क्रॉस, किसके क्रॉस? बेस और एमिटर के। आउटपुट कहाँ लूंगा? कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस। सो दिस इज योर व्हाट? आउटपुट, हियर इनपुट। सो इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉमन एमिटर एमीटर। कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन इसकी हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये कॉमन एमिटर हो गया। लाइकवाइज कॉमन कलेक्टर बना देते हैं, वो भी बना देते हैं नेक्स्ट पेज पे। कॉमन कलेक्टर कैसे बनाएंगे? उसमें हमने एमिटर ऊपर कर दिया, देख रहे हो, और कलेक्टर नीचे कर दिया। ये मेरा बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? सर ये पीएनपी। पीएनपी, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है? बेस और कलेक्टर के बीच में हमारे पास क्या आ रही है? इनपुट, और इसके बीच में क्या आ रही है? आउटपुट। गॉट इट? यस सर। तो जो टर्मिनल कॉमन है इनपुट आउटपुट के, उसके नाम से उसका नाम पड़ जाएगा। कॉमन बेस है तो कॉमन बेस कॉमन होगा, अगर एमिटर कॉमन है तो कॉमन एमिटर हो जाएगा, कलेक्टर कॉमन है तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा, कलेक्टर हो गया। राइट? अब मैं आपको एक चीज और बताया तो इसी के अंदर ही, जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना। जैसे आपका ये कॉमन एमिटर है, सॉरी कॉमन बेस है। अब कॉमन बेस देखो, एरो कहाँ पर है इसका? पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया, ये वाला एरो है हमारे पास, है ना? यस सर। तो ये इनपुट करंट क्या होगा? एमिटर करंट। Yes, sir. यस सर। और इनपुट वोल्टेज क्या होगी? आई वी वीआईएन। ये वीन लिखा है ना, वीन किससे इक्वल होगी?
एमिटर और बेस में लग रही है वोल्टेज, बेस, हाँ तो वी कैन राइट इट बीईबी, एमिटर टू बेस वोल्टेज। ओके सर। लाइकवाइज अब ये आपका एमिटर इनपुट गया, यहां से आपका बेस आया और यहाँ कलेक्टर जा रहा है, तो ये आउटपुट करंट क्या होगी, आईसी हो गया, सर और आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, VCB। तो यहाँ पर आउटपुट VBC वोल्टेज का हम लिखेंगे वोल्टेज VCB, वेरी गुड, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। Okay. Likewise, can you tell me what will the values of for this common emitter? Input voltage कितनी होगी? इस वोल्टेज क्या बोलूंगा मैं? VBE Very good. और इनपुट करंट क्या होगा? सर, IB IB IB, very good. अब उसके बाद आउटपुट करंट क्या होगा? सर, IC IC और आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी ये? VCE VCE बस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये आपको नोट करना है बस, अगर आप पहले कन्फिग्रेशन सही बना लेते हो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इनपुट करंट कितना है, मेरा इनपुट वोल्टेज कितनी है, तो सिर्फ आपको पता हो बेस एमिटर के बीच में लगा तो VBE है, इनपुट बेस पे जाए तो बेस करंट है। लाइकवाइज इफ आई मेक इट फॉर द कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर में क्या है, ये आपका करंट ऐसे जा रहा है, आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट करंट बताओ। IB IE होगा IE आउटपुट करंट, IE है ना, राइट, और आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, VEC। VEC EC व्हाट अबाउट इनपुट, IB करंट होगा और IBC IBC वोल्टेज VBC। सॉरी VBC और वोल्टेज। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसी बताऊंगा कि इन कॉन्फ़िगरेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्लॉट करते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं। तो अभी आपको ये चीज क्लैरिटी करनी है कि 3 टर्मिनल्स है, एमिटर बेस कलेक्टर, एक भी कॉमन होगा तो अकॉर्डिंगली उसका नाम पड़ जाएगा कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, और कॉमन बेस होगा तो उसकी इनपुट करंट क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट करंट क्या होगा। लाइकवाइज विद कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। क्लियर हो गया इतना? यस सर। चलो अभी स्टॉप करते हैं, टाइम हो रहा है। लेट्स टेक द अटेंडेंस।